Good morning, students. Today's topic is talk on a current loop in magnetic field. I taught you in the previous video lecture that a current carrying wire placed in magnetic field experiences force, and that force is given by IL vector cross B vector. If this is IL vector, magnetic field, theta angle between these two, then magnitude of this force is given by ILB sine theta, where theta is angle between IL vector and B vector. And direction of this force is also given by Fleming left hand rule. Stretch or curl fingers of your left hand mutually perpendicular to each other. I repeat, curl thumb, forefinger and central finger of your left hand perpendicular to each other in such a way that forefinger is in the direction of current, central finger is I'm sorry forefinger is in the direction of field, central finger in the direction of current flowing in the wire, then thumb will give the direction of force. Remember, direction of this force, which is magnetic force, is also given by Fleming left hand rule. इस फोर्स की डायरेक्शन भी हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं या राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं. सो दिस इज रेक्टेंगुलर वायर लूप PQRSP. एक तार है, उसको हमने रेक्टेंगुलर शेप दे दी और इसमें करंट पास किया, एंड दिस वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. इन द एरिया, ये जो इसके अंदर की जगह है, इसको कहेंगे हम प्लेन ऑफ लूप. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई प्लेस अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑन द टेबल, तो टेबल इज कॉल्ड प्लेन ऑफ द लूप. If magnetic field is parallel to the table, then angle between table and magnetic field is 0. Angle between table and magnetic field 0 means table क्या है? Plane of loop. Table is plane of loop. तो plane of loop और magnetic field, they are parallel, so angle between them is 0. Now this is a रेक्टेंगुलर वायर लूप और इसके प्लेन के बीच में, दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लेन और ये मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में थीटा एंगल है. करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है. सो आई एम डिवाइडिंग दिस लूप इनटू 4 पार्ट्स. एक होगी हमारी साइड PQ, दूसरी QR, RS तीसरी और SP फोर्थ. इफ यू लुक एट PQ साइड, तो करंट इधर आ रहा है, तो ये इसकी PQ की लंबाई L है. सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट. ये है डायरेक्शन करंट एलिमेंट की. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. So if this angle is theta between plane of wire loop and magnetic field, तो IL वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल, दिस इज योर B वेक्टर और ये है IL वेक्टर. इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा.
So force on PQ side, it is carrying current and it is in magnetic field. It is given by this FPQ is equal to ILB sine 180 minus theta. And we know sine 180 minus theta is equal to sine theta. So ये आ गई force on PQ side. Now force on QR side, QR की जो लेंथ है इट इज़ इक्वल टू बी, बिकॉज दिस इज रेक्टेंगुलर वायर लूप. ये वाली साइड QR और PS इनकी लेंथ B है, RS और QP की लंबाई L के बराबर है. तो ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी. B इज द लेंथ ऑफ दिस साइड और करंट नीचे जा रहा है, सो दिस इज योर IB वेक्टर. और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और IB वेक्टर के बीच का एंगल 0. सो फोर्स ऑन QR साइड इज IB इंटू B साइन 90, और साइन 91 होता है ये आ गई. एक्सक्यूज मी. फोर्स ऑन RS साइड, ये IL वेक्टर हो गया हमारा, इधर जा रहा है करंट. So this is IL vector, this is magnetic field. So force on this side RS is given by this. Now fourth side रह गई हमारी SP. ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन. This is magnetic field. Angle again 90. So force on SP is IBB sin 90. This is equal to IBB. Now, as I told you, direction of these forces is determined with the help of Fleming left hand rule or right hand thumb rule. According to Fleming left hand rule, force on PQ side इस तरफ होगी. This is axis of the wire loop. और नीचे वाली साइड पे इधर होगी. These two forces are in opposite direction. और इनकी वैल्यू जो है, this is FPQ, this is FRS, so they are equal. अगर ये 5 न्यूटन है तो ऊपर वाले भी 5 न्यूटन. Therefore they will cancel out. और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, तो दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क. अगर ये लूप है, एक फोर्स यहाँ लग रही है, दूसरी फोर्स यहाँ लग रही है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, रिजल्टेंट 0. ना लूप ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, बट इट विल रोटेट. सो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो इफ यू लुक केयरफुली, तो ये हुई डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स F1 न्यूटन, और इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस है वो ये. सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शंस ऑफ दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. तो दे विल टर्न दिस लूप. जैसे सिंपली अगर हम दिखाना चाहें, इसके चक्कर में ना पड़ें, तो ये एक फोर्स, ये दूसरी फोर्स, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, दे हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. ये A पे लग रही है, दूसरी B पे लग रही है, तो ये दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस F1 एंड F2. लेकिन अगर ये फोर्सेस हमारी एक यहाँ पे लगे, दूसरी ये नीचे की तरफ, और दूसरी यहाँ लगे, देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनकी लाइंस ऑफ एक्शंस के बीच में A' B', दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शंस. टॉर्क इज R परपेंडिकुलर इनटू F. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू दोनों में से कोई भी फोर्स का मैग्नीट्यूड. और अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को और पास ले आऊँ, ये एक फोर्स
ऊपर की तरफ और दूसरी फोर्स ये नीचे की तरफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों की लाइंस ऑफ एक्शन के बीच में अब A डबल डैश B डबल डैश और कम होगी। और अगर ये दोनों फोर्सेस ऐसे एक्ट करें, एक ऊपर की तरफ और दूसरी यहाँ नीचे की तरफ, तो लाइंस ऑफ एक्शंस के बीच की डिस्टेंस 0, सो नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, फोर्स 5 न्यूटन, सो नो टॉर्क मीन्स दिस रॉड कैनॉट रोटेट। यहाँ देखें A एंड ऊपर की तरफ जाएगा, B एंड नीचे की तरफ आएगा, रॉड विल रोटेट। यहाँ भी A डैश एंड A डैश पॉइंट ऊपर जाएगा, B डैश पॉइंट नीचे आएगा, अगेन इट विल रोटेट, लेकिन टर्निंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट और कम प्रोड्यूस होगा। हेयर टॉर्क इज 0, सो नो टर्निंग इफेक्ट विल प्रोड्यूस व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट सेम पॉइंट। तो इनकी लाइंस ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रही है, दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट। व्हेन दे विल प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, व्हेन दे आर एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो ये दोनों फोर्सेस, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगी, ये, और नीचे वाली फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगी। सो दे आर हैविंग सेम लाइंस ऑफ एक्शन, तो कोइंसाइड कर रही है लाइंस ऑफ एक्शन, सो दे विल कैंसल आउट एंड दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी टर्निंग इफेक्ट। और अगर हम इस साइड की बात करें और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो इस साइड के ऊपर जो फोर्स होगी दैट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द पेज एंड अपवर्ड। और ये जो ये वाली साइड है, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, इट विल अल्सो बी परपेंडिकुलर टू द पेज बट डायरेक्टेड इनवर्ड। सो इसकी ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड, इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड सेम, बट दे आर हैविंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो दीज टू फोर्सेस, नो डाउट इनका जो ट्रांसलेशन मोशन है वो ये दोनों नहीं पैदा कर पाएगी। यहाँ भी देखिए ये ट्रांसलेशनल मोशन नहीं प्रोड्यूस होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस तो नहीं होगा, बट इट विल रोटेट। सो टॉर्क ड्यू टू दीज टू फोर्सेस हम निकालना चाहेंगे। सो वी कैन से व्हेन अ करंट लूप इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, और उस टॉर्क के कारण इट विल रोटेट। सो एफ क्यू आर और एफ एस पी, दिस इज एफ क्यू आर, दिस इज एफ एस पी, दोनों की वैल्यू आई बी बी, और दे विल tend to rotate this current carrying loop. So torque is equal to tau, torque of the couple, ये forces का पेयर हो गया, इसको couple कहेंगे हम। two forces having equal magnitude and acting at different points constitute couple। तो कोई भी दोनों में से फोर्स ले लीजिए, दोनों की वैल्यू आई बी बी है, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइंस ऑफ एक्शन। तो इनको मैंने यहाँ दिखाया, ये है फोर्स परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, इसको सर्कल के अंदर हमने डॉट लगा दिया। दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, सर्कल के अंदर क्रॉस लगा दिया। सो ये एस पी फोर्स, ये क्यू आर फोर्स, और ये दूरी जो है इट इज़ इक्वल टू एल। सी दिस इज इक्वल टू एल, ये सी डी इज इक्वल टू एल, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और सी डी के बीच का एंगल थीटा। तो सी डी, सी और डी पॉइंट पे फोर्सेस लग रही है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस सी डी इज थीटा। तो ये थीटा है, दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। इफ यू प्रोड्यूस दिस लाइन्स, तो ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एस पी, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ क्यू आर। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में इट इज सी ई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज ईदर ऑफ फोर्स, इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू, इट इज आई बी इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस which is here, our perpendicular is CE. C is the perpendicular distance between lines of actions.
तो CE upon CD from this triangle, CE upon CD, it is cos theta base upon hypotenuse. From here CE is equal to CD cos theta and CD is equal to L. So this is your CE. तो CE की वैल्यू L cos theta, L और B को इकट्ठा कर लें, दिस इज एरिया ऑफ दिस वायर लूप. So this is the torque acting on the wire loop when it is carrying current I and placed in magnetic field B, and theta is angle between magnetic field and plane of the loop. This theta is angle between magnetic field and plane of loop. Now if there are n number of turns, then this torque n times हो जाएगा, n I a b cos theta. n I a, it is called magnetic dipole moment. n I a is magnetic dipole moment of wire loop. See, when current is passed through rectangular wire loop, it will produce magnetic field. Loop will produce magnetic field. If loop is producing magnetic field, then it is like a magnet. If it is like a magnet, it will have two poles, so it is a dipole. If it is a dipole, it will have dipole moment. In that dipole moment of this current carrying loop, we denote it by M. It is equal to n number of turns I into area of loop. Direction of M will be same as that of direction of area. SI unit n number of turns, कोई यूनिट नहीं, करंट के एम्पेयर, दिस इज एरिया, एरिया के मीटर स्क्वायर. सो ये SI यूनिट हो गया. Direction of M same as that of A. So look at this figure. This is normal to the plane of wire loop. तो it is direction of area. ये एरिया की डायरेक्शन है, और या क्या कह लो, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वायर लूप. सो M वेक्टर और दिस इज B वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा. इफ यू लुक केयरफुली at the figure, this theta plus alpha is 90. It is very easy to see theta plus alpha is 90. So if I want to calculate expression for torque, this is torque in terms of theta. Theta is angle between B and plane of the loop. तो मैं इसको अल्फा की टर्म में निकाला जाऊँ, थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री. फ्रॉम हेयर थीटा इज 90 डिग्री माइनस अल्फा. तो थीटा को पुट कीजिए 90 डिग्री माइनस अल्फा. सो कॉस 90 के कारण कॉस का साइन बन गया, तो इट इज साइन अल्फा. अल्फा इज एंगल बिटवीन M वेक्टर एंड B वेक्टर. सी हियर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर और M वेक्टर, and this is direction of B vector. So alpha is angle between B vector and M vector. So I can rewrite it in vector form. Tau vector is equal to M vector cross B vector. From this equation we can define M, और इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं. हम M को define magnetic dipole moment. So I am taking this equation to define magnetic dipole moment of wire loop. So tau is equal to MB cos theta. If B is 1, theta is 0. थीटा 0, जैसे हमने आपको कहा कि लूप इज प्लेस ऑन द टेबल सपोज, तो टेबल इज प्लेन ऑफ लूप, एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड is parallel to the table, then theta is 0. So put here B1 theta 0, so it becomes tau is equal to M into 1 into cos 0. Cos 0 is 1, so tau is equal to M. So therefore M
magnetic dipole moment of wire loop is equal to torque acting on a current loop placed in magnetic field of unit strength with its plane parallel to magnetic field. Theta 0 means plane of loop is parallel to the magnetic field. Now, a question based on torque acting on a wire loop in magnetic field. There is a rectangular coil whose sides are 8 centimeter and 6 centimeter, and there are 2000 turns in the coil. It is carrying current of 200 milliampere and is placed in magnetic field of 0.2 Tesla directed along positive x-axis. Calculate maximum torque acting on the wire loop. We know area of a rectangular loop is length into breadth. So length is 0.8 मीटर. इट इज इन सेंटीमीटर. इसके मीटर बना लीजिए 0.08. 6 सेंटीमीटर इज ब्रेड्थ. ये मीटर बन गए. सो दिस इज एरिया ऑफ कॉइल. N 2000, B is given. We know M magnetic dipole moment is equal to NIA. तो कॉइल की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिए. ये n नंबर ऑफ टर्न्स. दिस इज एरिया ऑफ वायर लूप इन SI यूनिट एंड इट इज करंट 200 मिली एम्पेयर मीन्स 200 इंटू 10⁻³ एम्पेयर. सो ये इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. सो ये है हमारा टॉर्क इन टर्म्स ऑफ अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन M vector and B vector. So when tau will be maximum? Tau is maximum when alpha is 90 because sin 90 is 1 और 1 इसकी maximum value होती है. So tau maximum is equal to MB. So M और V की value को multiply कर दिया, ये आ गया. Now in which orientation it experiences maximum torque? Tau निकाल लिया और ये maximum torque है. Now what about the orientation? Orientation from here we can see theta 0. It is very easy to tell something about the orientation. Tau is MB cos theta. So from here tau maximum means it is M into B. Theta should be 0. As I told you, if the loop is placed on the table, तो table is plane of the loop, magnetic field parallel होनी चाहिए, then theta 0 or tau is maximum. So we can say tau is maximum when plane of loop is parallel to the magnetic field, then it will experience maximum torque. Second part is when tau is 0, is equilibrium stable? When is it unstable? कि equilibrium stable कब होगा और unstable कब होगा? That is our next part. For maximum torque, ये तो मैंने इसकी टर्म में बताया है in terms of alpha. चलिए सी इसकी टर्म्स में भी हम बात करते हैं. जब हमारा जो लूप है, इफ इट इज प्लेस ऑन द टेबल, इसका एरिया जो होगा इट विल बी वर्टिकली अपवर्ड रूफ की तरफ. तो एरिया ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसकी वर्टिकली अपवर्ड होगी. मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द टेबल. मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द टेबल. और अगर हम टेबल पे रखेंगे कॉइल को या लूप को तो उसका एरिया इधर होगा. सो M वेक्टर ऊपर की तरफ रूफ की तरफ, B वेक्टर इस तरफ पैरेलल टू द टेबल, अल्फा इज 90. So we can say magnetic moment should be perpendicular to the magnetic field. तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी. यू नो टाउ इज MB sin अल्फा. तो अल्फा इज 90
tau is maximum. Tau is maximum. I'm sorry, tau maximum. So it is in unstable state because torque is maximum. So when maximum torque will act, when मैग्नेटिक फील्ड लूप के प्लेन के पैरेलल और इसकी डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ, देन इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क. नो टॉर्क जीरो कब होगा? टॉर्क जीरो तब होगा व्हेन, अगर ये हमारा लूप ऐसे, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड और इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो भी इसी तरफ. तो अब वर्टिकल जो वॉल है आपके रूम की, उसके ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम लगाई है. मान लिया वो फ़ोटो फ्रेम, ये जो फ्रेम है इसके ऊपर आप कॉपर की तार लपेट दीजिए, कॉइल बन गई. और ये जिस दीवार के ऊपर ये फ्रेम लगी है उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक. तो ये इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इधर होगा. सो अल्फा इज जीरो. इफ अल्फा इज जीरो देन टाउ इज जीरो बिकॉज साइन अल्फा इज जीरो. अनस्टेबल, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगी और इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगी, दोनों के बीच में एंगल 180. और इफ इट इज 180 देन it will experience torque, and that torque is given by now here it is sin alpha. तो इसमें भी टॉर्क जीरो होगा बिकॉज साइन 180 इज ऑल्सो जीरो. साइन जीरो इज जीरो. ये this is, I need to correct it, but just a minute. We know tau is mb sine of alpha. Now for stable and unstable equilibrium, if both are in same direction, m vector and b vector, tau is zero because sine 0 is 0. If alpha is 180 degree, again sine of 180 is 0, so again tau is 0. So in both the cases tau is 0, and tau 0 means ये one thing more जो कि हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए. तो इसमें टाउ 0 है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. बट इन दिस ओरिएंटेशन टाउ तो 0 होता है बट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट मिनिमम. सो दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. सो आई रिपीट, टॉर्क 0 दोनों केस में है, बट देर इज़ वन मोर कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम टू बी स्टेबल. उसमें एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए. सो in this orientation potential energy is minimum, but in this orientation potential energy is not minimum, so it is unstable and it is stable. I am telling you कि कैसे हुआ है. See, we know when electric dipole is placed in uniform electric field, दिस इज डाइपोल मोमेंट, ये नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ. सो टॉर्क ऑन दिस इज गिवन बाय पी ई साइन थीटा यू नो. एंड एनर्जी वी हैव ऑलरेडी ड्राइव्ड इट, इट इज माइनस पी ई कॉस थीटा. Similarly, when a magnet या magnetic dipole is placed in uniform magnetic field, this is your north pole, this is south pole, ये negative magnetic charge कहेंगे इसके पास है.
और इसके पास पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और इसमें मैग्नेटिक चार्ज। दिस इज एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें P की डायरेक्शन नेगेटिव पोल से, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें साउथ पोल के पास वी से दैट इट हैज़ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज और इसके पास पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम m से डिनोट करते हैं। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज mb sin of theta. Potential energy of this magnetic dipole is mb cos theta. So देखिए, if theta is 0, if theta is 0 then tau is 0. If theta is 0, tau is 0, and theta 0, energy is theta is 0, u is minus m into b. सो ये एनर्जी नेगेटिव है, 0 से कम है, सो इट इज़ मिनिमम। सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी स्टेबल, और ये वी कैन से दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट टॉर्क ऑन दिस मैग्नेटिक डाइपोल, और ये अपने पैरेलल इसको घुमा के ले आएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो ये ऐसे हो जाएगा। दिस इज़ अवर नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, दिस पोजीशन इज स्टेबल। अगर हम इस डाइपोल को ऐसे रखते हैं, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, नाउ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड m वेक्टर इज 180. So what is torque? Torque is mb sin of 180, जो कि 0 होता है, so it is 0. थीटा 180 डिग्री, एनर्जी माइनस एम बी कॉस 0, दिस इज दिस इज 180 एंगल, कॉस 180 इज -1, सो इट इज़ ये -1, तो ये माइनस दिस प्लस एम बी, सो एनर्जी ज़्यादा है 0 से ज़्यादा, सो इसमें एनर्जी ज़्यादा, टॉर्क इसमें भी 0 है, इस ओरिएंटेशन में, इस ओरिएंटेशन में भी 0 है, लेकिन इस ओरिएंटेशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, सो दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज स्टेबल पोजीशन ऑफ magnet, और you can say instead of magnet we have a wire loop। तो वायर लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इधर होगी पैरेलल इसके मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये स्टेबल, एंड इफ एंटी पैरेलल इट विल बी अनस्टेबल। नाउ वी हैव आफ्टर दिस व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। Galvanometer is a device which is used to know direction of flow of current in the circuit. We know in a electric circuit current can flow either in clockwise direction or in anti-clockwise, यही दो पॉसिबल डायरेक्शन है। सो ये अगर हमारा 0 मार्क है, दिस इज पॉइंटर, और ये इधर स्केल 0 के राइट की तरफ और ये स्केल 0 के लेफ्ट की तरफ। सो मोटे तौर पे आई कैन से कि अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो पॉइंटर विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स दिस साइड, और अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्किट में करंट फ्लो करेगा देन पॉइंटर विल बी डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये एंटी क्लॉकवाइज। सो गैल्वेनोमीटर इज नॉट यूज टू मेजर करंट, करंट को मेजर करने के लिए वी यूज एमीटर। एमीटर AM, it is derived from ampere, ampere meter, so AM यहाँ से ले लिया और एमीटर बन गया, सो एम्पेयर की मेजरमेंट जो करे दैट इज कॉल्ड एमीटर। सो गैल्वेनोमीटर का रोल जो है इट इज़ टू नो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कि क्लॉकवाइज की तरफ फ्लो कर रहा है करंट या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
और इसमें स्केल जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होती है, बट इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर स्केल यहाँ से किनारे से स्टार्ट होगी, 0 1 2 से 2 ये जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे होगा। एक्सक्यूज मी। So galvanometer is a device which is used to know the direction of flow of current in a circuit. Then what is its principle? जो हमने इसमें पीछे पढ़ा excuse me, कि current carrying wire loop when placed in magnetic field it experiences torque. This is the principle of galvanometer. So I will discuss galvanometer in the next video lecture. So thank you for watching.